A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of Economics. I hope all of you are well and doing studies at your home. Dear students, in the previous lecture of economics, we have discussed about the economic reforms and the elements of economic reforms in which we have started the concept of liberalization and the economic reforms and the liberalization. In this, we have discussed about the industrial sector reforms, in which there were some points such as abolition of industrial licensing, contraction of public sector, de-reservation of production areas, expansion of production capacity, and the freedom to import capital goods. And the other factor that we have discussed, that was the financial sector reforms, in which we have discussed about the changed role of Reserve Bank of India. Now, students, in today's lecture, we are going to proceed with the liberalization reforms, in which we are going to discuss tax reforms, thereafter the foreign exchange reforms, and the trade and investment reforms. So, let's get started. Initially, we will start from the very first topic, that is the tax reforms under the liberalization. Dear students, tax reforms are an important component of fiscal policy of the government. गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी थी उसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, टैक्स रिफॉर्म को बोल सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, what do you mean by the fiscal policy? That means what is the fiscal policy? So dear students, fiscal policy refers to revenue and expenditure policy of the government. गवर्नमेंट की अर्निंग और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी होती है, दैट इज नोन एज द फिस्कल पॉलिसी. नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द टैक्सेस, as it is a major source of income for the government, so these taxes are classified into two parts. The very first is the direct tax and the second one is indirect tax. As the name is signifying about the direct tax, these are the taxes that cannot be shifted. That means on whomsoever these taxes are imposed, they have to bear the burden or they have to pay the tax. For example, income tax, wealth tax, gift tax are the elements of the direct tax. Now the indirect taxes, so these are just opposite taxes of the direct taxes. The taxes, initially the burden is bared by some other person, and the later on the burden of the tax can be transferred to the other person, is known as indirect taxes. These are the taxes of which the burden can be transferred from one particular person to another particular person. See over here, one who pays such a tax can shift the burden of this tax on the final buyer of goods and services by adding the tax amount on the basic price of goods sold. ठीक है. अब अगर हम लोग इसके एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हैं. See dear students, prior to liberalization, tax structure was quite complex and tax rates were very high. अगर हम लोग liberalization के concept से पहले की बात करें, जो tax structure था वो बहुत complex था, difficult था, and even the tax rate, जो tax rate थे, जो tax slab था वो भी बहुत ज़्यादा था. ठीक है. और क्या हुआ, इस हाई टैक्स रेट्स की वजह से, है ना, जो टैक्स का एविएशन, लोगों ने क्या करा, टैक्स को एविएट करना, दैट मीन्स टैक्स में चोरी करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, एंड इट कॉजेज द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. तो क्या हुआ, व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्सेस रिड्यूस, अल्टीमेटली द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो रिड्यूस्ड. सी फर्दर, बाय फॉलोइंग लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट ने जब लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स हैव ग्रेजुअली बीन रिड्यूस. दोनों टैक्सेस को, इनकम टैक्स को भी और कॉरपोरेट टैक्स को भी क्या करा, ग्रेजुअली रिड्यूस करा. इनकम टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ ऑल्सो बीन रिफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी. जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था उसको भी रिफॉर्म किया, किसके फॉर्म में, जीएसटी के फॉर्म में, दैट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स.
दिस हैज़ रेज्ड टैक्स कॉम्प्लायंस, इसकी वजह से क्या हुआ, जो टैक्स कॉम्प्लायंस है दैट मीन्स जो मैकेनिज्म है वो स्मूथ हुआ, एंड देयरफॉर जो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू थी वो कंपैरेटिवली क्या हुई बेटा, इंक्रीज हुई. ठीक है. नाउ इन दिस देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड इट्स सेल्फ नोट विल बी प्रिपेयर्ड बाय यू पीपल as we have discussed about the GST earlier as well. Now the next point, that is the foreign exchange reforms under liberalization. See, what was the main purpose behind the foreign exchange reform? That was to resolve or to solve the BOP crisis of the country. BOP is the balance of payment. So we were facing a crisis of BOP in which our foreign exchange expenditures were very high and foreign exchange incomes were very low. ये थी हमारी BOP crisis. अब इन क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए 2 मेजर स्टेप्स को इनिशिएट किया गवर्नमेंट ने. द फर्स्ट स्टेप इज द डीवैल्यूएशन. देखिए, डीवैल्यूएशन वाज द फर्स्ट स्टेप इनिशिएटेड इन दिस रिगार्ड इन 1991. एंड व्हाट इज द डीवैल्यूएशन? अगर हम लोग बात करें बेटा डीवैल्यूएशन की, देन इट इम्प्लाइज लोअरिंग द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन रिलेशन टू द अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड. जब हम लोग फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में अपनी करेंसी की वैल्यू को लोअर डाउन करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, देन इट इज़ नोन एज डीवैल्यूएशन. क्या करना? डी मतलब डिक्रीज, डीवैल्यूएशन करना, वैल्यू को डिक्रीज करना. कॉन्सिक्वेंटली इससे क्या होगा, अ यूएस डॉलर कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज देन बिफोर. अगर हम लोग पहले 40 रुपीज़ में $1 परचेज करते थे, तो अब डीवैल्यूएशन के बाद हम लोग को अपनी जो करेंसी उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा. दैट मीन्स हम लोग 50 रुपीज़ में $1 एक्सचेंज कर पाएंगे. इम्प्लाइंग दैट अ यूएस डॉलर कैन परचेज मोर गुड्स इन द इंडियन मार्केट. इसका मतलब ये कि अब जो इंडियन मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली क्या कर पाएंगे, अपनी सेम करेंसी से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे. दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स. इससे क्या होगा, हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि डॉलर सेम रहा, $1, लेकिन 40 के प्लेस पे अब कितने का हो गया, वो 50 का हो गया. तो दैट मीन्स जो पहले 40 का सामान परचेज कर पा रहे थे, अब कितने का परचेज करेंगे, उस सेम डॉलर से 50 रुपीज़ का सामान परचेज करेंगे. तो क्या होगा, जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज होंगे और इम्पोर्ट्स डिक्रीज होंगे. एंड कॉन्सिक्वेंटली द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द इंडियन इकोनॉमी इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज. जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट कम होंगे तो आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा, और जो बीओपी क्राइसिस है वो क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी. ठीक. सेकेंड वन इज़ द फ्लोट एक्सचेंज रेट. इनिशियली द करेंसी वैल्यू इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फॉरेन करेंसी वॉज प्री डिसाइडेड. लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, दैट इज द फ्लोट एक्सचेंज रेट. इसमें देखिए इसने क्या हुआ, after devaluation in 1991, India adopted the concept of float exchange rate in the international market, and in this exchange value of Indian rupees in the international money market was left to the free play of market forces. पहले predetermined concept चल रहा था, लेकिन अब क्या करा, फ्री मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया कि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या होगी. एंड व्हाट आर द फ्री मार्केट फोर्सेस, द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द पर्टिकुलर करेंसी. The next one, that is the trade and investment policy reforms. If we talk about the trade and investment policy reforms, तो इसमें कुछ focus areas थे, जैसे कि increasing international competitiveness of the domestic industry. जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करना, इंड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमारी कंट्री में प्रमोट करना, इंड्यूस करना, ग्रीड आउट करना. नेक्स्ट, ब्रिंगिंग एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी. क्या करना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसे अपनी कंट्री में क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, उसे परचेज करना. ठीक. Now the trade investment policy, how does it take reforms? And it used to take reform in some steps. The very first is the dismantling the quantitative restrictions on imports and exports. Before the concept of 1991 policy, there were restrictions on the quantitative restrictions on the import and export. You can import the goods, you can export the goods, but only to a certain quantity. तो इनिशियली जो वो क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन से उन्हें क्या कर दिया, रिमूव किया. स्पेसिफिकली ऑन किस कंसर्न में, देखिए, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल गुड्स वर रिमूव्ड.
कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चरल गुड्स में से जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के, उन्हें क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया. सेकंड, रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स. टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस वर कंसिडरेबली मॉडरेटेड, विड्रॉन मैनी टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थे उनको कंसिडरेबली क्या किया, रिड्यूस किया, रादर देन हम लोग उसको बोलते हैं कि विड्रॉ कर लिया. ठीक है, बहुत से आइटम्स और आइटम ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या किया, जो हमारा टैरिफ सिस्टम था, जो टैरिफ रेट से उनको विड्रॉ किया, और बहुत से ऐसे आइटम्स थे, ऐसे गुड्स थे जिनमें कि इस रेट को, इस टैरिफ रेट को क्या करा, मॉडरेट करा. तो इन मैनी ऑफ द कंटेक्स्ट टैरिफ रेट वाज मॉडरेटेड एंड इन सम ऑफ द कंटेक्स्ट और इन मैनी ऑफ द कंटेक्स्ट द टैरिफ रेट वर रिमूव्ड. The next one, that is the removal of import licensing. The policy of import licensing was abolished except, भाई इम्पोर्ट लाइसेंसिंग के पॉलिसी को रिमूव कर दिया, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऐसे रखे, कुछ एरियाज ऐसे रखे, जैसे कि हिजार्डियस इंडस्ट्रीज़ जो हो सकती हैं या जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं. इस केस में आज भी आपको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, अदर देन आपको किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड द लास्ट वन, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटीज़. जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ताकि जो इंडिया की जो पोजीशन है इंटरनेशनल मार्केट में वो क्या हो सके, कॉम्पिटिटिव हो सके. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, एक्सपोर्ट करें. इसलिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको रिमूव कर दिया, सो दैट एनी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, बिजनेस मैन, हु सो एवर इज़ फाइंडिंग कि उनका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके अपना सामान सेल आउट करें, जिससे कि इंडियन मार्केट की भी पोजीशन क्या होगी, बेटर होगी. नाउ सी अ नोट ओवर हेयर, लिबरलाइजेशन एंड लेजिस्लेटिव सिस्टम आर डिफरेंट. अब मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गेट कन्फ्यूज दैट कि भाई जो मैम ने लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताया है ये सेम है किसकी तरह, लेजिस्लेटिव सिस्टम की तरह. सो डियर स्टूडेंट, बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट. इफ वी टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव सिस्टम, देन इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द स्टेट इन द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी. लेजिस्लेटिव इकोनॉमी कौन सी थी, ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कहीं से कहीं तक कोई भी रोल नहीं होता है. किसमें, किसमें, इन द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, इसको हमने बोला लेजिस्लेटिव सिस्टम. जबकि अगर हम लोग लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन क्या है, इट इम्प्लाइज अ सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट अलाउज ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये वो पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट आपको ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही, फ्रीडम प्रोवाइड कर रही है, किसको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, बट इट डजंट मीन दैट देयर विल बी नो कंट्रोल ऑफ द government. So it is all about today, dear students. What we have discussed today, we have discussed about the tax reforms, in which we have discussed about the direct and indirect taxes, and we have discussed that the tax system was liberalized and due to which the tax revenue of the government increased. Thereafter we have discussed about the foreign exchange reforms, in which we have discussed about devaluation and the float exchange rate. Thereafter, the last we have discussed, that is the trade and investment policy reforms. In this, dismantling of quantitative restrictions, reduction in tariff rates, removal of import licensing, and removal of export duties we have discussed. This is all about today. God bless you. Lots of love.